اسی سے کل یہ اعلان کیا تھا اور موجود ہے کہ رحمان باجوہ دو کام کر سکتا ہے، یا تو آخری حد تک آپ کے مطالبات منظور ہو گئے یا رحمان باجوہ جیل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رحمان باجوہ صاحب آپ اکیلے جیل نہیں جائیں گے، یہ پورے پنجاب کے سازہ اور ملازمین اکٹھے جیل میں جائیں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک یہاں ڈٹے ہوئے ہیں، یہاں پر ہیں، یہاں پر ہیں، یہاں پر رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ جوا کھیلا تھا کہ چھٹی کے دن دھرنے کو جاری کرنا، چھٹی کے دن دھرنا جاری رکھنے کے حوالے سے ہم نے جوا کھیلا تھا۔ ساتھیوں کی خواہش کے مطابق اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد ملازمین کی آج تک موجود ہے، مگر یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیو انکیشمنٹ وفاق کے اندر نہیں ہوا ہے، پنجاب میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وہاں پہ ہو گیا۔ جو ایک سوال اٹھتا تھا کہ جی پنجاب سے لاہور والوں نے اسلام آباد والوں کو دلوا دیا، وہ بھائی ادھر جا کے دلوا دیا، یہاں سے اپنا لے لیں، 8 مہینے میں آپ نے کیوں نہیں لیا؟ پھر ایک سوال یہ ہوتا تھا باجوہ نے کچھ نہیں کیا، تو باجوہ نے تو پنڈال لگا دیا۔ تاریخ میں دھرنے ہوتے تھے، تعداد کم تر ہوتی تھی، آج 5واں دن ہے دھرنے کو، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں یہاں پہ روڈ کے اوپر ہی سو رہا ہوں، کس لیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر کل کو جو میرے سے سوال کرے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی رحمان باجوہ تو ادھر بیٹھا ہوا تھا آپ کے لیے، روڈ پہ ہی تھا، آپ 10 لاکھ ملازم جو ہے وہ کہاں پہ تھے؟ کیا یہ جو چند ہزار لوگ ادھر موجود ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں؟ آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ 5 دن تک جو ہے مسلسل نہیں رکے، تو کیا یہ جو لوگ ادھر موجود ہیں کیا یہ صرف ان کا مسئلہ ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس؟ کیا پینشن ریفارمز رول 17A یا لیو انکیشمنٹ ان کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو تنخواہوں میں تفریق کے آپ شکار ہیں، جس کا بینیفٹ جب بھی وفاق میں ملا صوبوں کو بھی ملتا ہے اور اس دفعہ بھی وفاق کے بعد گلگت بلتستان پھر کشمیر KPK میں بھی 15% دے دیا، اور بلوچستان کے ساتھیوں نے وہاں پہ جدوجہد کی ہے، گرفتاریاں دی ہیں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ تو ابھی ایسا کچھ سلسلہ ہی شروع نہیں ہوا۔ کیا جن لوگوں کے مطالبات 1-2 دن میں جو کہتے تھے پورے ہو رہے ہیں، 8 مہینے کے باوجود اتنا بڑا پروٹیسٹ ہے، یہاں پہ تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی؟ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کریں، تنخواہوں میں تفریق کا یہ جو تفریق ہے یہ ختم ہو، تو آپ کو یہاں پہ پہنچنا پڑے گا سول سیکریٹریٹ لاہور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیو انکیشمنٹ آپ کے بڑھاپے کی جو جمع پونجی تھی وہ آپ کو پوری ملے، تو آپ کو لاہور پہنچنا پڑے گا۔ اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آج ناکام ہو جاتے ہیں، آج تو اکٹھ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کو جن لوگوں نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں یہ اکٹھ نہیں ہو سکتا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، جو آج سے 1 سال پہلے ساتھی ریٹائر ہوئے، صرف ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ ان کو کتنے ہزار کا نہیں، پینشن میں تو 1000 کا نقصان ہوا ہوگا، جو ان کی کمیوٹ تھی، اور لیو انکیشمنٹ میں کتنے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، اور وہ پوچھتا رہے کہ کاش کہ جب کال دی گئی تھی تو ہم عملی طور پہ نکلتے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پینشن ریفارمز سندھ کے ملازمین نے واپس کروا لی، ایک بڑی تعداد میں نکل، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، سخت ترین حالات ہیں،
मगर इसके बावजूद आपकी क़यादत बड़ा हिकमत अमली के साथ चल रही है। ये चीज़ वाज़ेह रहे कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हम गैर सियासी हैं। आज तक हमने कोई ऐसा बयानिया जो है नहीं दिया जो खुदा न खास्ता हुकूमत के मुखालिफ हो, रियासत के खिलाफ हो। जब जहाँ रियासत को हमारी ज़रूरत पड़ी हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, जब जहाँ इदारों को हमारी ज़रूरत पेश आई हम वहाँ पे खड़े हुए हैं। बहैसियत सरकारी मुलाजिम हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, मगर इसके साथ साथ हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि रियासत माँ के जैसी है, ये मुतालबात पूरे करें और ये जहन में रखे गवर्नमेंट। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने वादा किया था वो वादा करें, पूरा करें। रियासत माँ के जैसी है। ये बच्चे बहुत जिद्दी हैं, ये मार भी खाएंगे, जिद भी करेंगे, मगर ये बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं। अपना मुतालबा इन्होंने रो के पीट के मनवाना है। अगर कोई ये कहे कि ये बदतमीजी करेंगे और फिर कोई ऐसा काम होगा तो ऐसा कतई नहीं होगा। मुतालबे पूरे किए बगैर हम लोग इंशाअल्लाह ताला यहाँ से किसी सूरत में जो है वो नहीं। ये ख़वातीन इधर मौजूद हैं, आप मैसेज दें जो आप देना चाह रही थी बाकी ख़वातीन टीचर्स और उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम किसी तंजीम को, किसी को भी नहीं है, हम सिर्फ अपने हक के लिए आए हैं। बाजवा साहब की कॉल पे आए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा हक हमें मिलेगा। जब हम कायदीन के कहने पर लब्बैक कहते हैं, चाहे जो भी हो तंजीम, जहाँ की भी हो, इस्लामाबाद जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, तो कायदीन हमारी बात क्यों नहीं सुनते? सारे टीचर्स इस वजह से परेशान हैं कि हम क्या करें। कायदीन क्यों सोए हुए हैं, कायदीन क्यों नहीं उठ रहे, कायदीन क्यों नहीं जाग रहे? क्या उनको हमारी किसी बात की कोई टेंशन नहीं है? हम तो फीमेल उनके साथ बच्चों समेत चली जाती हैं जहाँ पे भी मर्जी जाना पड़े, तो क्या वो सोए पड़े रहेंगे इसी तरह? क्या सब लोग अपने मफाद के लिए ही हैं बस? हमारी किसी को कोई फिक्र नहीं है। किसी टीचर काज के लिए नहीं निकल सकते हम लोग? कभी तो हम अपने मफाद को एक साइड पर रख के एक टीचर के लिए निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? इस बंदे को हमसे क्या गरज है? ये तो वफाक का बंदा है, उनको तो बेनिफिट्स मिल जाते हैं और मिल भी रहे हैं। ये तो हमारा काम है ना, सूबे का काम है। सूबे का काम था, हमें निकलना चाहिए था। सादकाबाद से लेके कहाँ तक हम लोग टीचर्स हैं, तो क्यों नहीं निकले? हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हमें हमारा कायद कॉल करेगा, हमारी यूनियन वाले हमें कहेंगे, फिर हम जो है वो अपने स्कूलों से निकलेंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई कायद ये कहेगा कि आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए या आपको कोई बेनिफिट मिल जाए। आप जो 5 रोज से इधर बैठे हुए, तो उनको नहीं पता चल रहा? उनको सारा पता है, उनको एक लम्हे का पता है, लेकिन सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपने बड़ों की खातिर वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो फिर हम तो मजबूर हैं, हमने तो अपनी बका की जंग लड़नी है। हम मजबूर हैं, हम निकल आए हैं। जितने हमारे वसाइल थे उसके मुताबिक हम आ गए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे जो है वो पूरे करें। तो ये मेरा पैगाम है पंजाब के तमाम मुलाजमीन के लिए। मुतालिबात पूरे होते हैं या नहीं होते? ये जो साथी इस धरने के अंदर मौजूद हैं, ये अपना नाम सुनहरी हरूफ के अंदर तारीख में लिखवाएंगे और जो किसी मसलियत के तहत, किसी मजबूरी के तहत, किसी अनाज, किसी जिद, किसी जाती मफाद, किसी डर, किसी खौफ की वजह से घरों में बैठे हैं, अहले कुफा की तरह आपका नाम भी जैसे इसे आरूप में लिखा जाएगा। खुदारा बाहर निकलें अपनी जात के लिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ मुखलिस हैं, छोड़ें किसी को, अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। आपका ज़मीर क्या कहता है कि ये लोग किसके लिए बैठे हैं, ये अपनी जातियों के लिए नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तक बैठेंगे जब तक मुतालिबात नहीं पूरे होते। आप जो घरों में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया को छोड़ें। यार मेरे तो आज इस्लामाबाद से दोस्त यहाँ पे पहुँचे, और खुदा की कसम वो दोस्त भी मेरे साथ यहाँ पे पहुँचे जो सरकारी मुलाजिम नहीं है। वफाकी मुलाजिम तो पहुँचे ही पहुँचे हैं, मेरे वो दोस्त भी इधर पहुँचे मेरी ज़ात के लिए कि यार हमारा दोस्त इधर गया।
तो अपने दोस्त अहबाब को लेके आए, किसी के चेहरे के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये सरकारी मुलाजिम है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने साथी इस वक्त मौजूद हैं सरकारी मुलाजिम है, नंबर 1, और नंबर 2 ये जो 5 दिन से इधर बैठे हुए, ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए, किसी सियासी जमात से कोई पैसे लेके फंडिंग लेके यहाँ पे नहीं बैठे हुए। कितनी देर तक अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ये साथी जो है धरना जारी करके रखेंगे। तो मुश्किल टाइम है, जितना भी मुश्किल टाइम आया इंशाअल्लाह ताला जो आप धरने के अंदर मौजूद है, मेरी बहनें, मेरे भाई, आपने मेरे हौसले जो हैं आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जिंदाबाद। खुदा न खास्ता गवर्नमेंट ऑपरेशन गिरफ्तार अगर करती है जिंदाबाद। तो जिस वक्त पहले हम गिरफ्तार हुए थे तो मेरे साथ रात को सिर्फ 80 लोग, अब तो सैकड़ों की तादाद के अंदर है। और जो एक कैंपेन चली हुई है, ये मैं वाज़ेह करता चलूं गवर्नमेंट के लिए भी मेरा पैगाम है, और शाह से ज्यादा शाह के वफादारों के लिए, कि एक भी शोकस, एक भी एक्सप्लेनेशन ये मुकम्मल तालाबंदी की तरफ जाएगी, और इसके जिम्मेदार शाह से ज्यादा शाह के वफादार वो टट्टू होंगे जो किसी भी डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। हर सूरत में यहाँ पे पहुंचे हम मुलाजमीन के हकूक के साथ साथ आपकी इज्जत नफ्स का भी इंशाअल्लाह ताला जो हम दिफा करेंगे, और हर इंडिविजुअल साथी के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह।